Hello friends, how are you all? Today we will do chapter 13, So Many Toys. As you can see in this picture, there are so many toys. Let's read the question. Look at the picture and find the number of different toys. And we have to see the picture, we have to tell the number of toys. As you can see, this is a toy shop. There are a lot of toys. We have to tell the number of toys. Let's start. Let's start. Elephants. 1, 2, 3, 4. So there are 4 elephants. Car. There is only one car. Teddy bears. 1, 2, 3. There are 3 teddy bears. Dolls. 1, 2, 3, 4, and 5. Complete the following sentence by using more than complete the following sentences by using. तो फ्रेंड्स हमने इस वाली कार को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर सिर्फ रेड कार की थी. सो दैट्स वाई हमने इसी कार को काउंट किया है, इस कार को काउंट नहीं किया है. Complete the following sentences by using more than, less than and equal to. अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है बाय राइटिंग दीज मोर देन, लेस देन, इक्वल टू. ओके, लेट्स स्टार्ट. द नंबर ऑफ डॉल्स इज डैश देन द नंबर ऑफ कार्स. अब डॉल्स ज्यादा है, मोर देन है, लेस देन है या इक्वल्स टू है. तो मुझे लग रहा है डॉल्स तो मोर देन है. More than. The number of elephants is dash the number of dolls. अब elephants कितने हैं? 4 elephants हैं and 5 dolls हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा? Less than, क्योंकि elephant doll से कम है. Less than. The number of teddy bears is the number of elephants. अब teddy bear 3 है and elephant 4 है, तो teddy bear कम है. So we have to write less than. The number of cars is the number of teddy bear. कार 1 है और teddy bear 3 है, तो कार लेस है, तो लेस देन. Colorful flowers. Name the color of flowers which you see mostly in the garden. अब आपको कलर बताना है फ्लावर्स का जो आप गार्डन में मोस्टली देखते हैं. तो मैं तो रेड तो मोस्टली देखती हूँ. रेड, येलो and white. Look at the picture of the colorful flowers and write the number of flowers. अब आपको यहाँ पर colorful flowers देखने हैं और उस flower के numbers यहाँ पर लिखने हैं. Blue flowers. Let's count blue flowers. 1, 2, 3, 4, 5. तो blue flowers कितने हैं? 5. Count कीजिए orange flowers. 1, 2, 3, 4. Red flowers. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. And ये वाले purple flowers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, let's start next. Name the color of flower. Name the color of flowers which are least in number. Least मतलब जो सबसे कम है. तो फ्रेंड्स मैं ये वाला वर्ड मार्क कर देती हूँ लीस्ट, जिससे हमें रीड करके पता लगेगा कि क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहे हैं. सो लीस्ट मतलब सबसे कम. तो सबसे कम आपको कौन से लग रहे हैं? ऑरेंज फ्लावर. ऑरेंज flowers. Next, name the color of flowers which are most in number. Most मतलब सबसे ज्यादा. तो सबसे ज्यादा कौन से हैं? 9 यानी red flowers. Red flowers. False. Number of red flowers is more than blue flowers. तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स ज्यादा है ब्लू फ्लावर से. 9 है और यहाँ पर 5 है. सो दिस इज ट्रू. ये स्टेटमेंट ठीक है. सो दिस इज ट्रू. Number of orange flowers is less than the purple flowers. अब ऑरेंज फ्लावर लेस है पर्पल फ्लावर से. यस ये ठीक है. ये 4 है और ये 6 है. ऑरेंज फ्लावर्स लेस है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Next, puzzles. Gopal arranged number cards in the below image and Ananya hid them with bolts as shown. Can you recognize the numbers? अब गोपाल और अनन्या ने नंबर्स को हाइड किया है. गोपाल ने बिलो से किया है और अनन्या ने ऊपर से हाइड किया है. चलिए देखते हैं ये कौन सा नंबर लग रहा है. ये मुझे 2 लग रहा है. ये 3 लग रहा है. ये मुझे 8 लग रहा है. ये 9, 0, 5, 4. Can you also hide a number on the number cards by using your hands and play this game with your friends? अब आप नंबर कार्ड लेंगे. इस नंबर को ऊपर से या नीचे से हाइड करेंगे. आप साइड से भी हाइड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ इस गेम को प्ले करना है. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. Count the number of logs. It is 3 logs or 4 logs. अब ये बच्चा यहाँ से देख रहा है तो 4 logs लग रहे हैं. 1, 2, 3, 4. ठीक है. और ये बच्ची यहाँ से देख रही है. फ्रेंड्स यहाँ पर एक के ऊपर एक रखा हुआ लॉग, तो यहाँ से 3 दिख रहे हैं. जो नीचे वाला है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए इस बच्ची को ये लॉग्स 3 लग रहे हैं. पर एक्चुअल में लॉग्स कितने हैं? 4 लॉग्स हैं. सो हम यहाँ लिखेंगे 4 लॉग्स. This is how Zarina said the glasses help her in extending the arrangement. अब जरीना ने इन ग्लासेस को अरेंज किया है. अब आपको इसको और एक्सटेंड करना है. जैसे पहले बेस में 1 था, फिर 2 हो गए, 3. अब यहाँ पर आप 4 रख सकते हैं कप्स को. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर 4 कप्स आएंगे. एंड इसके ऊपर 1. ऐसे ही आपको अरेंज करना है. अब यहाँ पर 4 थे. अब यहाँ पर आपको 5 ग्लासेस नीचे रखने हैं. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट.
Find the numbers from 1 to 10. अब यहाँ पर आपको इस पजल में नंबर्स को फाइंड आउट करना है. 1. चलिए आइए देखते हैं. मुझे यहाँ पर 6 दिख रहा है. हमें 10 तक करना है, तो हमें कुछ भी कहीं भी दिख सकता है. 8. 5. 2. 9. 3. 1, 2, 3, 5, 4. मेरा 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब में 7 नहीं मिला. 7 ये रहा. 7, 8, 9, 10. ये रहा 10. चलिए एक बार चेक करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Fill the numbers from 1 to 5 in the given ball so that the sum on both sides is equal. अब हमें इन दोनों sides में 1 to 5 में numbers जो आते हैं वो fill करने हैं. हमें कुछ इस तरीके से fill करनी है कि यहाँ का अगर हम यहाँ के नंबर को प्लस करें और यहाँ के नंबर को प्लस करें, हमारा आंसर सेम आए. The sum on the both sides is equal. Let's start. पहले हम ये मार्क कर देते हैं. हमें दोनों साइड्स में सेम सम चाहिए और नंबर हमें फ्रॉम 1 to 5 चाहिए. Let's start. तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया. तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पर 1. यहाँ पर 4 + 1 5, 5 + 5 10. तो यहाँ पर 10 आंसर आ रहा है. चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं हमें कितना नंबर लिखना है. मैंने यहाँ लिख दिया 3 और मैंने यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ पर 5 + 3 6 7 8. 8 में हम कितना और ऐड ऑन करें कि 10 बन जाए. 9 10. 2 हमें और ऐड ऑन करना है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया. Start the next. Gillu's favorite number is 8. If the answer of the asked question is 8, he becomes happy. If not, he becomes sad. Ask some questions to Gillu that has an answer 8 only. अब आप देख सकते हैं गिल्लू का फेवरेट नंबर 8 है. अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 8 आता है, गिल्लू बिकम्स हैप्पी. अगर 8 आंसर नहीं आता, गिल्लू बिकम सैड. चलिए आइए हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका आंसर 8 आएगा. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन. I have 3 pencils. My friend
Give me 5 more. So, how many pencils? I have now. तो फ्रेंड्स अगर आप वन में सॉरी अगर आप सो फ्रेंड्स अगर आप 3 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर विल बिकम 8. तो फ्रेंड्स अगर आप 3 पेंसिल्स में 5 पेंसिल्स ऐड ऑन करेंगे तो आंसर 8 आएगा. हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं. Ria have 10 notebooks. She gave 2 notebooks to her teacher. How many notebooks she left? तो फ्रेंड्स रिया के पास 10 नोटबुक्स थी जिसमें से उसने 2 नोटबुक्स अपने टीचर को दे दी फॉर चेकिंग पर्पस. हाउ मेनी नोटबुक्स शी लेफ्ट? अब उसके पास कितनी नोटबुक्स रह गए हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? 8. बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे यहाँ पर. ओके लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. Fill these shape in the boxes in such a way that fill these shapes in the boxes in such a way that any shape occurs only once in a row, horizontal and column. तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं these horizontal यानी स्लिपिंग लाइन are rows. ये जो हैं ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं. ये जो हैं ये कॉलम्स हैं. तो फ्रेंड्स इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमें रोज एंड कॉलम्स में शेप्स को ऐसे फिल करना है ताकि वो एक हर रो और कॉलम में एक ही बार आए. तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ ट्रायंगल आ गया है. अब ट्रायंगल यहाँ भी नहीं बना सकते, हम यहाँ भी नहीं बना सकते क्योंकि वो एक बार आ चुका है. तो मैंने यहाँ सर्कल बना दिया क्योंकि यहाँ पर सर्कल नहीं है. और मैंने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है. तो इस रो में तीनों अलग अलग शेप हैं, कोई शेप रिपीट नहीं हो रही है. तो यहाँ पर ट्रायंगल ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था. और यहाँ पर स्क्वायर है, सर्कल है, तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तीनों शेप्स अलग अलग हैं, कोई शेप रिपीट नहीं हो रही है. और यहाँ पर भी कोई शेप रिपीट नहीं हो रही है, दोनों अलग है. यहाँ पर कॉलम में भी, यहाँ कॉलम में भी दोनों अलग है और इस कॉलम में भी तीनों अलग अलग है. तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, मैंने यहाँ स्क्वायर ड्रॉ कर दिया. तो तीनों अलग अलग शेप्स हो गई. यहाँ पर क्या नहीं है? ट्रायंगल नहीं है, तो मैंने यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों शेप अलग अलग हैं, यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, इस रो में तीनों अलग अलग शेप्स हैं, इस रो में अलग अलग है और इस रो में भी अलग अलग है. चलिए ये कॉलम में चेक करते हैं. कॉलम में भी
ये तीनों अलग अलग शेप्स हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, टेक 4 different objects. Each object should be 4, such as 4 buttons, 4 pebbles, 4 seeds, and 4 clay balls, etc. Now place them in the given boxes in such a way that every object occurs only once in a row, horizontal and column, vertical standing. Okay friends, जैसे हमने ऊपर शेप्स का किया था, ये अलग अलग शेप है और हर शेप एक बार आनी चाहिए, एक ही बार रो में आनी चाहिए और एक ही बार कॉलम में आनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, 4 buttons, 4 pebbles, 4 seeds and 4 clay balls, और आपको इस तरह से फिल करना है कि कोई शेप रिपीट ना हो रही हो। जैसे कि मान लीजिए ये बटन है, ये पेबल है, ये सीड है और क्ले बॉल कुछ इस तरह की है। तो फ्रेंड्स ये चारों अलग अलग हैं और यहाँ पर 1 1 1 बटन यहाँ पर 1 है सब में, क्ले बॉल सब में 1 टाइम है और पेबल भी सब में 1 टाइम है। कैन यू फिल देम थ्रू द सम अदर वेज? क्या आप और तरीकों से भी फिल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप रोज भी चेक कर सकते हैं, कॉलम भी चेक कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है। Am I a mirror can help you? अब फ्रेंड्स ये एक्टिविटी करने के लिए आपको एक मिरर की हेल्प चाहिए होगी। आपको बताना है ये नंबर्स क्या है। ये नंबर्स को यहाँ पर उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, जो कि मिरर की हेल्प से आपको पता लगेगा कि ये नंबर्स क्या है। तो जब मैंने मिरर से चेक किया तो ये नंबर था 25। लेट्स राइट हियर। आपको मिरर से चेक करना है। ये नंबर था 52, ये नंबर था 73 और ये था 39। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हु एम आई? तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर पजल्स गिवन होंगी। I am between 5 and 10. I become 3 more when read ups and down. I am between 5 and 10. I become 3 more. I am between 5 and 10. I become 3 more when read upside down. तो फ्रेंड्स ये नंबर है 5 to 10 के बीच में, और जब ये नंबर को उल्टा करके रीड करते हैं तो ये नंबर 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स कोई बताएगा ये क्या है? ये नंबर 6 है। तो अगर इस नंबर को टेढ़ा करके हम रीड करते हैं तो ये नंबर 9 बन जाता है, 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, 7 8 9। तो फ्रेंड्स 6 नंबर है, जिसे हम उल्टा करके पढ़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो आंसर इज 6. I am 3 more than 8 and 3 less than 14. 3 more than 8. चलिए आइए फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। 9 10 11। बैकवर्ड काउंटिंग करके ट्राई करें। 13 12 11। तो आंसर इज 11. I am after 50 and before 52. I am after 50 and before 54. Sum of 7. I am after 50 and before 54. Sum of my digits is 7. तो फ्रेंड्स ये नंबर जो है ये 50 के बाद आता है और 54 से पहले आता है, और अगर इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, सम करेंगे इनका, तो आंसर क्या आता है इसका? 7.
तो फ्रेंड्स 5 and 1, चलिए हम आफ्टर 51 से ट्राई करते हैं। 5 and 1, 51 को अगर हम प्लस करेंगे 5 + 1 तो ये 6 आएगा। सो दिस इज नॉट द आंसर। 5 + 2 6 7, तो आंसर इज 7। तो आंसर इज 52। एक बार ट्राई करके देखिए यहाँ पर 5 + 2 = 7। सो यहाँ पर इनका लिखा हुआ था सम ऑफ द डिजिट्स इज 7। ओके, आई एम जस्ट बिफोर 40। आई एम जस्ट बिफोर 40, तो 40 के बिल्कुल बिफोर क्या आता है? 39। Add 5 to me, you will get 24। अब 24 में ऐसा, अब 5 में क्या नंबर ऐड करें कि आंसर हमारा 24 हो जाए? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 24 में से 5 माइनस करूंगी, वो नंबर मुझे मिल जाए। चलिए आइए बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। 23, 22, 21, 20, 19। तो फ्रेंड्स आंसर इज 19। तो फ्रेंड्स 19 में अगर आप 5 ऐड ऑन करोगे तो क्या आंसर आएगा? 20, 21, 22, 23, 24। तो आंसर इज 19 कि 19 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने माइनस इसलिए किया था ताकि मुझे वो नंबर पता लग जाए। आई एम जस्ट आफ्टर 35, तो 35 के बिल्कुल बाद क्या आता है? 35, 36। Reduce 8 from me and 14 will be left। तो क्या ऐसा रिड्यूस करें? 8 ऐसे नंबर में 8 माइनस करें और 14 रह जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 8 प्लस करूंगी ताकि मुझे वो नंबर पता लग जाए। चलिए आइए फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू करते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 22 में से 8 रिड्यूस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 14। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। Matchsticks, 6 matchsticks are used to make 0. 6 matchsticks are used to make a 0. Can you make any other number by shifting a single matchstick? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 matchsticks का यूज किया है 0 नंबर बनाने के लिए। अब हमें इन्होंने बोला है कि एक सिंगल मैचस्टिक आपको शिफ्ट करनी है ताकि आपका आंसर कोई और नंबर आए। हमें कोई और नंबर बनाना है पर हमें सिर्फ एक बार मैचस्टिक हटानी है। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये वाली मैचस्टिक हटाऊंगी तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये वाली हटाऊंगी तो कुछ नहीं बनेगा, कोई नंबर नहीं बन रहा। नीचे वाली हटाऊंगी तो यू बन जाएगा इन्वर्टेड वाला, ये वाली हटाऊंगी तब भी कोई नंबर नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स करते क्या है, ये वाली मैचस्टिक्स को ऐसे ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर ये वाली मैचस्टिक है, इसको हम इस तरह कर देंगे, सिंगल शिफ्ट इस तरफ को ले आएंगे और आप देख सकते हैं ये नंबर क्या बन गया? 6। इन्होंने सिंगल शिफ्ट कहा था तो हमने सिंगल शिफ्ट ही किया है, तो आंसर हमारा 6 आ गया है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। फाइंड आउट द मिसिंग पीस एंड कंप्लीट द पॉट। तो फ्रेंड्स ये पजल है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए ये और इसको हम
करेंगे तो ये वाला ऊपर का हिस्सा बन जाएगा और ये रहा नीचे का हिस्सा, ये छोटा सा टुकड़ा, ये रहा ये वाला टुकड़ा, ये वाला पीस, ये रहा ये वाला पीस, ये रहा। तो फ्रेंड्स ये मिसिंग पीस तो मुझे यही लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाली शेप अगर आप देखोगे और इसकी ये वाली शेप आप देखोगे तो दोनों मैच हो रही हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मिसिंग पीस, जिसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये पॉट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25? तो 25 में से हम 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट हियर। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने कितनी बार माइनस किया है? 5 टाइम्स। Ranu has 3 seeds. She wants to place them on any 3 numbers of the given chart in such a way that the sum of those numbers will be 17. Can you help Ranu in finding the numbers? तो रानू ने 3 seeds को प्लेस किया और उसने 3 numbers इस चार्ट में कुछ ऐसे प्लेस करे कि इन तीनों का प्लस करके आंसर 17 आ रहा है। द सम ऑफ द नंबर दोज नंबर विल बी 17। और यहाँ पे लिखे ऑन एनी 3 नंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, पहले हम रो वाइज देखेंगे, फिर हम कॉलम वाइज देखेंगे। तो हम रो इस तरह चेक करेंगे। 4 + 9 13, 13 + 6, तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा, हमें 17 चाहिए। 9 + 6 15, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए 17 होने के लिए, नहीं हुआ। ये तो 16 ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें 17 बनाना है, तो नहीं होगा इन तीनों को प्लस करके। 8 0 + 8 8, 8 + 5, 8 + 5 will be 9 10 11 12 13, तो ये भी नहीं होगा। ये तो बहुत बड़े नंबर है, इन तीनों को प्लस करके 17 आंसर तो नहीं आएगा। इन तीनों को प्लस करके देखते हैं। 13 + 1 14, 14 15 16, तो 17 नहीं बन रहा। इस तरफ से देखते हैं। 17 + 10 27, बहुत बड़ा नंबर बन गया, तो यहाँ पर इन तीनों को प्लस करके देखते हैं। 10 + 12, ये भी बहुत बड़े नंबर हैं, तो रो वाइज तो किसी को प्लस करके 17 नहीं आ रहा। चलिए आइए कॉलम वाइज चेक करते हैं आप इस तरीके से, ताकि हमें पता लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन तीनों को प्लस करके तो नहीं आने वाला 17, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। और इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तब भी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 और 16 है। आगे देखते हैं। इन तीनों को प्लस करेंगे तो फ्रेंड्स ये नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। 10 और 13 है, तो नहीं आंसर आएगा। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो भी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। 13 + 9, तो ये 21 समथिंग, 20 से ये ऊपर ही नंबर बनेगा, तो हमें तो 17 चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप पता बन जाए। इन तीनों को पहले प्लस करते हैं। 8 + 1 9, 9 + 6 10 11 12 13 14 15, नहीं आया, 15 आंसर आ रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 8 + 1 9, 9 + 3 12, नहीं आया, 17। अब लास्ट रो बची है। 7 + 5
और 12 प्लस 2 14 नहीं आया। इन तीनों को प्लस करके देखते हैं। 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 5 ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा 19, तो हमें चाहिए था 17। तो फ्रेंड्स हमने रोज एंड कॉलम्स दोनों ट्राई कर लिया, पर हमारा आंसर 17 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, पर 17 नहीं आ रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। इन हाउ मेनी वेज डिड यू डू इट। तो हमने रोज एंड कॉलम से चेक किया था, तो हम 2 वेज लिख सकते हैं यहाँ पर। 2 ways, that is rows and columns. Rows and columns. Next, if you have 2 seats, which number will you place them to get total of 17? अगर हमें 2 seats को रख के नंबर बनाना है, 2 नंबर्स को प्लस करके, ताकि उनका आंसर 17 आए, तो आप कौन कौन से नंबर लेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल नंबर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 10 प्लस 7 17, और आ सकता था 13 प्लस 4, तो एंड सो ऑन बहुत सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इनसर्कल द आइडेंटिकल शेडो इमेज। अब हमें देखना है कि आइडेंटिकल इमेज क्या है, इसमें आइडेंटिकल शैडो क्या है। टेल है, 2 ईयर्स है, और ये हाथ। चलिए आइए देखते हैं। टेल तो है पर 2 ईयर्स है, नो, ये वाला ईयर तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं है। इसमें टेल मिसिंग है, इसमें ईयर्स मिसिंग है, इसमें दोनों ईयर्स भी हैं, टेल भी है, तो दिस इज द करेक्ट इमेज, करेक्ट शेडो, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। Write the number from 5 to 9 in the card given below such that the rows and columns have total sum. तो हमें 5 to 9 में से कोई भी नंबर्स यहाँ लिखने हैं, ताकि उनका रोज एंड कॉलम्स का आंसर सेम आए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिख दिया 5, यहाँ 4, यहाँ 1, तीनों अलग अलग नंबर है। अब मैंने यहाँ पर 4 लिख, 9 एंड 1, 4 9 तक लिखना था, 5 to 9 सॉरी। यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 7। तो तीनों का अलग अलग ना है, रोज में कोई रिपीट नहीं हो रहा, कॉलम में कोई रिपीट नहीं हो रहा। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, इन तीनों में भी यही नंबर है। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, तो दोनों का आंसर सेम है। ट्राई टू गेट द सेंटर। फ्रेंड्स तो हमें सेंटर वाला नंबर, हमें यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने हैं, ताकि हमारा जो आंसर हो वो सेंटर वाला नंबर हो। जैसे कि 7 माइनस 1, 7 में से -1 किया, बैकवर्ड काउंटिंग करो, 7 माइनस 1 6, 3 प्लस 3 6। तो ऐसे ही हमें पेयर ऑफ नंबर बनाना है जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आंसर ये सेंटर वाला नंबर हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैंने किया 2 प्लस 4 which is 6, 8 minus 2, 1 plus 5, और
एक और माइनस का करते हैं। टेन माइनस 4। यहाँ पर देखिए 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11। 4 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, नहीं 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। 4 plus 7 is equals to 11. Now 12 minus 1 is equals to 11. ये मैंने 21 लिख दिया। 12 minus 1 is equals to 11. 13 minus 2 is equals to 11. 8 plus 3. 8 plus 3 is equals to 11. Just a second. Is equals to 11. और यहाँ पर 10 plus 1 is equals to 11. 15 का देखते हैं। 10 plus 5. 12 plus 13. No, 12 plus 3. 18 minus 3. 16 minus 1. 14 plus 1. And 9 plus 6 is equals to 15. चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ऊपर पेयर ऑफ नंबर्स बनाए थे टू गेट द आंसर इन द सेंटर। जो सेंटर वाला नंबर है वो आए। यहाँ पर ऑलरेडी आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं और आपको बताया गया है कि प्लस करके कि इन्हें आंसर ये वाला चाहिए। जैसे कि 6 प्लस 9, 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर 10 में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 15 आ जाए। 10 प्लस 5 15। यहाँ पर देखते हैं 12 प्लस 3 15। यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15 7 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें 13 प्लस 2, यहाँ पर आएगा 8 प्लस 7। यहाँ पर आएगा 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पर आएगा 11 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 15। तो फ्रेंड्स ये ऐसे सॉल्व करना था। Sarita has 4 different coins. Sarita has 4 coins of different value. Sarita के पास Sarita has 4 coins of different values. चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से coins हैं। 10, 5, 2, 1. What is the minimum number of coin used to spend exactly 49? तो 49 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ये कॉइन्स कितने यूज करने पड़ेंगे। तो पहले तो हमें यहाँ पर बनाना है 40, इसके बाद 9। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें 10 का कॉइन चाहिए। 1 2 3 4।
ये भी 10 चाहिए। 10 + 10 20 30 एंड 40। अब यहाँ पर चाहिए हमें 1 5 का कॉइन। 40 + 5 45। 49 बनाना है। 2 का कॉइन यूज कर सकते हैं। 45 46 47। 2 हम 1 के कॉइन्स यूज कर लेते हैं। 1 and 1। 10 20 30 40 45 46 47 48 49। सो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन कितने लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉइन्स लगे हमारे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 कॉइन्स। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑरेंज। यहाँ पर 2 वाटरमेलन्स हैं जिनको प्लस करके हमारा आंसर 8 आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पेयर ऑफ नंबर बनाएंगे। पेयर ऑफ नंबर जिनको प्लस करके 4 आंसर आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 वाटरमेलन्स हैं, यानी इन दोनों की वैल्यूज बराबर है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पर मैं 4 प्लस यहाँ पर भी 4 आंसर आ जाएगा। 4 + 4 = 8। फोर प्लस 4 = 8। तो यहाँ पर वाटरमेलन की वैल्यू 4 है और यहाँ पर आंसर 10 आ रहा है। तो हमें ऑरेंज की वैल्यू दिखनी है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 10 में से 4 माइनस कर देते हैं, विच इज द वैल्यू ऑफ वाटरमेलन। 10 में से 4 माइनस कर दिया तो आंसर विल बी 6। तो यानी ऑरेंज की वैल्यू क्या है? 6। लेट अस प्ले द बॉल गेम। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ बॉल्स हैं और उन पे कुछ नंबर गिवन है। चलिए आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। चूज 3 बॉल इन सच अ वे दैट देयर सम विल बी 15। अब आपको ऐसी 3 बॉल्स चूज करनी है जिनका प्लस करके आंसर 15 आ रहा हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 2 + 4 6। इनसे यहाँ पर नहीं आ रहा आंसर 15। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा आंसर नहीं आ रहा। चूज 3 बॉल्स टू गेट मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम फ्रेंड्स होता है कि सबसे ज्यादा स्कोर आए। तो हमें ऐसे 3 बॉल्स चूज करनी है जिसे प्लस करके आंसर सबसे बड़ा आ रहा हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा आंसर ये रहा। तो आप 8 + 4 + 6 ले सकते हैं। यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं 8 + 4 + 6। इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 8 + 4 + 6 इन्हें आंसर हमें प्लस करके आंसर हमारा आ रहा है 18, जो सबसे मैक्सिमम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज 3 बॉल्स टू गेट अ मिनिमम स्कोर। अब सबसे कम नंबर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ ऊपर प्लस किया था, देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, विच इज 12। तो उसमें हमने 3 बॉल्स कौन सी चूज की थी? 4 8 प्लस, उसमें हमने 3 बॉल्स कौन सी चूज की थी? 2 + 4 + 6 = 12. So here is the answer.